But before we begin, a very few housekeeping points. Use the chat box to drop your questions. We will take them up in the Q&A session. And don't forget to fill out the feedback form at the end of the session to receive your CE certificates. I'm extremely delighted to introduce our speaker, Mr. Faisal Aziz Sandela, the Senior Pharmacy Manager at Shifa International Hospital, Islamabad. Mr. Faisal is a respected name in our field. He is not only known for his strong leadership and clinical expertise, but also for being a mentor and motivator to many of us in the pharmacy. Mr. Faisal is a pharmacy graduate from Gomal University, DI Khan. He has around 23 years of experience in hospital pharmacy services that include IPD, OPD, clinical, sterile and non-sterile preparations, take-home pharmacy services, and supply chain management. He also has expertise in surgicals as well. He has done his MBA in Healthcare Services Management from Shifa Tamir Millat University, Islamabad. He is also serving as an adjunct faculty in hospital pharmacy practice at Shifa College of Pharmaceutical Sciences. He has served at almost all positions in hospital pharmacy department, currently working as a senior manager pharmacy at Shifa International Hospital, Islamabad. Today, he'll be sharing his thoughts on how to stay motivated, overcome personal and professional hurdles, and keep moving towards the life and career you dream of. Please join me to warmly welcome Mr. Faisal Aziz Sandela. Assalamu alaikum. Thank you very much. Am I audible? Yes, sir. And screen visible? Yes, sir. Screen is visible. Sure. Thank you so much, Ms. Homa and the other panelists for giving me the opportunity to have such a kind and nice topic for discussion today. It is very close to my heart, and being a senior position, I always encourages my staff by such kind of motivational things in my daily practices. And today I'll be sharing a few terrific tips and some other tools how we can do this in our daily life and practices to have better outcomes. So as the name indicates, self-motivation, तो ये हम सब ने अपने ऊपर अप्लाई करना है, और ये इंटरनली आप जब ये करेंगे तो होपफुली बाय द एंड ऑफ सेशन you will get some idea how we can do and have better outcomes. So if we move towards next, we will cover today our self motivation and its importance कि क्यों इसकी ज़रूरत है हमारी डेली लाइफ में as a healthcare professional. कुछ टिप्स मैं बताऊंगा कि क्या आप कर सकते हैं to achieve those, and some external और internal rewards जो मिल रहे होते हैं हमारी teams को मुख्तलिफ टाइमिंग पे as an individual, as a staff, as a mentor as well. यानी कि two way है, इसमें individuals को भी होता है और इसमें response भी मिल रहे होते हैं, and actually what is needed for that change. तो आज हम फार्मेसी रिलेटेड चीज़ें शायद हम उस तरह टच ना करें, लेकिन ये आपकी सॉफ्ट चीज़ें हैं जो कि आपके 99% फार्मेसी के नॉलेज को अगर आप ये वाली चीज़ें साथ साथ करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी एक इंटरनल रिकग्निशन भी मिलेगी, एंड यू विल ग्रूम एंड हैव बेटर आउटकम्स ऑलवेज. फिर लिविंग योर ड्रीम्स हम सबका होता है, हम बचपन से लेके बड़े होते जाते हैं, हमारे मुख्तलिफ किस्म के ड्रीम्स कि हमने ऐसा करना है, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसको किस तरीके से किया जा सकता है. और लास्ट हम बिलीफ इन योरसेल्फ, अपने आप पे जब हमें खुद एतमादी होगी हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं. तो ये हमारी कोई 5 to 6 टॉपिक्स होंगे और माय स्लाइड्स कवर दीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ मोटिवेशन एज अ डेफिनेशन अगर हम देखें कि ये वो एबिलिटी है व्हाट नीड्स टू बी डन विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर पीपल. हमें हमेशा होता है ना कि हम कोई अच्छा काम करें तो हमें कोई ना कोई थपथपाए, हमें कोई बूस्टर मिले, कोई विटामिन मिले, ऑल्दो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन सेल्फ मोटिवेशन ऐसी चीज़ होती है जो कि इट फाइंड्स अ रीज़न एंड स्ट्रेंथ टू कंप्लीट अ टास्क. इस पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर्मली और इस तरीके से कोई रिवॉर्ड मिलेगा. आपको वो मोटिवेशन इंटरनली ही ड्राइव कर रही होती है कि आप उस टास्क को कंप्लीट करें, इवन व्हेन चैलेंजिंग, विदाउट गिविंग अप या नीडिंग अनदर टू एनकरेज दैट. आप हमेशा से वो नहीं चाहेंगे कि यार कोई और एनकरेज कर रहा है, नहीं कर रहा. सेल्फ मोटिवेशन आपको खुद अपने अंदर वो ड्राइविंग फोर्स रखनी होती है जिसकी बेस पे वो आएंगी. अब ये होती कैसे हैं ये हम आगे चल के जरा देख लेते हैं. बट सेल्फ मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई हैव रेड दैट अमंग ऑल मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन इज ऑन टॉप. आप कभी भी किसी चीज़ से खुश नहीं हो सकते. हमने अपनी स्टडीज़ में पढ़ा भी होगा, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, या ये
तो सेल्फ मोटिवेशन ऐसी चीज़ है कि आप अपने आप को एक ड्राइव फोर्स करते हुए अपने गोल्स और उन ड्रीम्स की तरफ जा सकते हैं। तो यू हैव टू गेट एट एनी टाइम। जो बंदा सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगा, वो बाकी रिवॉर्ड्स भी एक ना एक दिन वो भी उसके लिए कम पड़ जाएँगे। तो ये इंसानी फितरत है, हमें इस सेल्फ मोटिवेशन को मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो सेल्फ मोटिवेशन एक फैक्ट या फैंटेसी, यूजुअली कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं दिमाग में, जैसे हम एज एम्प्लॉय हम सर्विसेज में हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में हैं, सम एम्प्लॉयज आर जस्ट नॉट मोटिवेटेड। अब उसके कई रीजंस हो सकते हैं, उनको जॉब पसंद नहीं आ रही, कोई और एनवायरनमेंट का इशू है, सैलरीज के मसाइल हैं, कुछ और इश्यूज हैं, वट एवर सीन। डू रिवॉर्ड्स ऑलवेज मोटिवेट, ये भी एक क्वेश्चन है, क्या ऐसा ही होता है? तो इसमें हाँ और ना दोनों आंसर्स हैं, यानी कि रिवॉर्ड्स भी मोटिवेट करते हैं, लेकिन कई सूरतों में रिवॉर्ड्स मोटिवेट नहीं कर रहे होते। आप उससे बियॉन्ड बरक्स कुछ चीज़ सोच रहे होते हैं। यू कैन बी मोटिवेटेड वन डे एंड नॉट द नेक्स्ट, ऐसा है। हम ज़िंदगी में एक दिन होते हैं, दूसरे दिन नहीं, तो ये हर टाइम का एक इश्यू है। तो हमें इसको एक कंसिस्टेंसी के साथ मीट करना है। फिर कॉम्पिटिशन इज़ अ ग्रेट मोटिवेटर। अगर आप किसी को कम्पीट करना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल मोटिवेट करेगा कि यार वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। आप भी करें, आप ऐसी अटेम्प्ट्स करें कि आप उस कॉम्पिटिशन, उस चैलेंज में आप अचीवमेंट हासिल कर सकें। फिर फाइनली पनिशमेंट इज़ एन इफेक्टिव मोटिवेटर। किसी को सज़ा के दो, यार मुझे सज़ा मिलेगी, मैंने ये काम करना है। तो इसको मैंने सबसे आखिर में देखा है, हमें इसकी तरफ नहीं जाना, लेकिन एज़ अ ह्यूमन हमारे लिए ये ऑप्शन है कि हम अगर काम नहीं करेंगे, सज़ा मिलेगी, उस बेस पे भी अगर कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट्स तो आ ही जाते हैं। बट वी शुड थॉट कि हम इसके बरक्स कोई चीज़ करें। हम जो वक़्त, हमें जो टास्क दिया गया है, जो हमारी ज़िंदगी में आने का पर्पज़ है, हम जिस वजह से काम कर रहे हैं, हम अपनी ह्यूमन लाइफ़, सुबह जब उठते हैं, हमें एज़ अ मुस्लिम पता है ना कि हमारे लिए नमाज़ फ़र्ज़ है, 5 वक़्त है, हमसे पूछा जाएगा, कब्र में सबसे पहले पूछा जाएगा। उसकी मोटिवेशन है कि हमने यार आगे जाना है, मुझसे पूछ-गछ होगी, मैंने ये करना है। तो मोटिवेशन ही रखेगी कि यार मुझे इस रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए ये काम करना है, तो जाएँगे। तो माशाल्लाह जो लोग नमाज़ या उससे अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं, आई एम प्रिटी अनडाउटफुल कि उनकी कोई दिन में ऐसी एक्टिविटी रही होगी। हाँ, जिस दिन नमाज़ है वो ना पढ़ें, उस दिन का आगाज़ भी अच्छा नहीं होता। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। तो ऐसी ह्यूमन में हमारे पास डेली जो वर्कआउट होती हैं, हम उन मोटिवेशंस के साथ चल रहे होते हैं। सेल्फ मोटिवेशन के लिए हमें थिंक ऑफ द लास्ट ओकेजन दैट मोटिवेटेड यू एज़ एन इंडिविजुअल। आप सोचें कि आखिरी दफ़ा कब हुआ था? जब भी इस टॉपिक पे बात होती है, तो सबके पास कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल होगी, यार लास्ट टाइम क्या हुआ था ऐसा? कोई रिवॉर्ड मिला था? कोई चीज़ आपने इंटरनली अचीव करने के लिए क्या ऐसा किया था? तो सब अपने-अपने ज़हनों में दोहराइएगा। मेबी हम एट द एंड ऑफ सेशन एक-दूसरे से कुछ टॉपिक्स या कुछ स्टोरीज़ अगर शेयर कर सकें, तो मैं अपनी एक शेयर कर सकता हूँ कि लास्ट मोटिवेशन मेरी अपने फैमिली, मेरे बच्चे, उनके रिजल्ट्स, तो अच्छे ग्रेड से अगर वो पास हो गए, दैट हैज़ मोटिवेटेड कि यार मैंने उनके साथ जो वक़्त गुज़ारा, जो वो पढ़े, उसने मुझे दिया है। तो एक मेरे लिए वो मोटिवेशन है, माय फैमिली। मेरे लिए आप सब लोग, जितना मेरा फार्मेसी की फैमिली की टीम है, ये एक मोटिवेशन रखती है। कोई भी अच्छी चीज़ शेयर कर देना, ये एक मोटिवेशन है। तो एज़ एन इंडिविजुअल मोटिवेशन के लिए बड़े गोल्स भी हो सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यू कैन नेवर कि यार कोई अंडर एस्टिमेट करके कि यार कोई बड़ी चीज़ होगी तो वही करूँगा। नो, छोटी-छोटी चीज़ें भी इंसान को मोटिवेट कर रही होती हैं। मैंने बताया व्हाई इट वाज़ इंटरेस्ट टू यू। अब हर एक की अपनी इंटरेस्ट है, उसमें क्या चीज़ ऐसी थी जिसकी वज़ह से आपने उसको ही मोटिवेशन का फैक्टर जाना, एंड व्हाट मेड यू परस्यू कंटिन्यू। आप उसको फर्दर कंटिन्यू करके कंसिस्टेंटली अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे? एंड डिड यू एनकाउंटर एनी इश्यूज़? इफ सो, हाउ डिड यू ओवरकम देम? ये एक सवालात आते हैं एक सेल्फ मोटिवेशन में कि आपको अगर ऐसे कोई चीज़ें डेली लाइफ़ में ऑब्ज़र्व हो रही हैं, तो आप उनको टैकल कैसे कर रहे होते हैं? तो हम आगे चल के कुछ टिप्स आपसे शेयर करेंगे। फिर थिंक ऑफ द लास्ट व्हेन यू मोटिवेटेड और ट्राई टू मोटिवेट सम अदर पर्सन। वो अपने इंडिविजुअल के लिए था। अब आप ये भी कुछ कर सकते हैं कि आपने किसी को मोटिवेट किया या नहीं किया। अब आप सोचें कि यार उस वक़्त आपने क्या ऐसा किया? क्या ऐसी नई चीज़ की और उस दौरान में क्या अच्छा हुआ था? व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली इफ यू डिड इट अगेन? अगर वो दोबारा करना चाहेंगे रिज़ल्ट लेने के लिए, तो कोई डिफरेंट चीज़ करेंगे या हाउ डिड यू फाइंड द एक्सपीरियंस ओवरऑल? तो एक अपनी होती है कि हम मोटिवेट हो रहे हैं, एक अपने आप को मोटिवेट करते हुए और लोग देखें, क्योंकि एज़ अ सीनियर पर्सन आई ऑलवेज़ थिंक कि यार जब भी कोई हमसे इंटरेक्ट कर रहा हो, ये इट्स माय पर्सनल कि हम जब भी कोई काम या वो कर रहे होते हैं, तो वी ऑलवेज़ ट्राइड कि हमारे वर्ड्स का चुनाव, हमारी कम्युनिकेशन, हम जो आपको बात बता रहे होते हैं, वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हो, बिकॉज़ छोटी से छोटी चीज़ भी आप पे इम्पैक्ट डाल रही होती है कि यार ये सर बता रहे हैं, फलाँ बता रहा है।
इसीलिए आप भी एज ए इंडिविजुअल अपने आप को भी और अपनी कम्युनिकेशन रखते हो अपने जूनियर्स, अपने स्टाफ के साथ, आप जब उनसे बात करेंगे तो उनको एक वे मिलेगा कि यार इनसे बात करने से देखें ना ये चीज़ होती है, ये मसले का हल भी है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो इट्स जस्ट मैं अपनी बात कर रहा था। सो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन क्या हो जाए हमारे लिए? सेल्फ मोटिवेशन इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ पर्पस। आपको पर्पस मिल जाता है कि यार सेल्फ मोटिवेशन, बिकॉज़ सेल्फ मोटिवेशन आपके अपने हाथ में है, आपको खुद पे कंट्रोल है। आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। इर्रेस्पेक्टिव कि यार हमको इंस्ट्रक्शन देंगे, हम बॉस ही बन जाएँगे, हम मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, एटसेट्रा, ऐसा नहीं। हमें अपना पर्पस कि यार मैं अपने अंदर क्या वो तब्दीली लाऊँ कि चीज़ें मेरे एक्शन से वो काम भी होता जाए और हमारा पर्पस भी अचीव हो। तो सबसे पहले पर्पस आता है, ये इम्पोर्टेंट। देन सेल्फ मोटिवेशन लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। आप जब ये काम करेंगे, योर परफॉर्मेंस विल डेफिनिटली इम्प्रूव और वो बेटर से बेटर होती जाएगी। ये आप जिन लोगों ने किया होगा वो बिल्कुल मुझसे इधर एग्री करेंगे, और जो लोग अगर इसी शशोपंज में है कि कब करें तो वो आज से शुरू करें। इट ऑलवेज हैव अ बेटर इम्पैक्ट। सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका अपना इंस्टिंक्ट है। सुबह उठना, टाइम पे उठना, ये आपकी सेल्फ मोटिवेशन है। और उठना है क्यों? क्योंकि आपको पता है यार मैं टाइम पे जाऊँगा, लेट नहीं होऊँगा, जॉइन अपने टाइम पे करूँगा, अपनी सर्विसेज़ दूँगा, अगर फैमिली का कोई टास्क है वो अचीव कर लूँगा टाइम पे। तो ये सारी सेल्फ अपने ऊपर आप करेंगे। देन सेल्फ मोटिवेशन प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ। आपको जब ये चीज़ें होंगी, आपको मौके भी मिलेंगे कि आपने ग्रोथ कैसे करना है। लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी फॉर दोज़ कि आप फिर आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते जाएँ। फिर चौथा है कि सेल्फ मोटिवेशन इंक्रीज़ेज़ रेज़िलियंस। आप फ्लेक्सिबल हो जाएँगे, आप में लचक पैदा होगी, आप अच्छे काम करेंगे, और डेफ़िनेटली जब आप ये कर रहे होंगे तो आगे वाला आपको देख के मोटिवेशन में ये चीज़ें लेके जाएगा। बिकॉज़ वर्ल्ड बहुत टफ है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, ये हम सबको पता है, किसी भी हवाले से। इवन आप अपनी स्टडीज़ को देखें, क्या आप सब लोग फॉर्म डी, बी-फार्म हमने बहुत आसानी से कर ली थी, कितनी मेहनतें करनी पड़ी थी। वो भी एक मोटिवेशन ड्राइव थी ना, कि हम यार ग्रेजुएट हो जाएँगे, फिर हमने इस प्रोफ़ेशन में आना है। फिर एज़ अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हमारी क्या कंपैशन, हमारी मोटिवेशन है। हम पेशेंट को अच्छी मेडिकेशन सही टाइम पे प्रॉपर डोज़ के साथ डिस्पेंस करने की बात करते हैं। तो मैं अगर 20, 22, 23 साल से हॉस्पिटल सेक्टर्स के साथ हूँ, तो मेरी अपनी मोटिवेशन है कि आई एम प्राउड, और मुझे यहाँ काम करते हुए मज़ा भी आता है। तो आपने अगर दिन में किसी एक को अच्छी सलाह दे दी, अच्छी ड्रग के बारे में काउंसलिंग कर ली, तो दैट इज़ योर मोटिवेशन। तो आप लचक पैदा करके आप डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ आ जाते हैं, एंड लास्ट सेल्फ एस्टीम आपका इम्प्रूव होता है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। आप सेल्फ मोटिवेटेड करके जब टास्क टाइम पे अचीव कर रहे होंगे, आपके गोल्स होंगे, आपके दोस्त आपसे खुश होंगे, आपकी मैनेजमेंट आपसे खुश होगी, तो ओवरऑल एक सेल्फ एस्टीम मिलेगी। यार आई एम ए एस्टीम पर्सन, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 सेल्फ मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस है। वेरी गुड थिंग्स टू बी फॉलोड। रोल मॉडल की बात आती है। हमारी ज़िंदगी में सबका कोई ना कोई किसी न वक़्त में रोल मॉडल रहा होगा। हम चाहते हैं यार ये ऐसा बन जाए। जैसे हम अपने इस प्रोफ़ेशन में ही देखें, फार्मेसी प्रोफ़ेशन में कितने लोग हैं, हम अमेरिका इधर-उधर हॉस्पिटल फार्मेसी देखें, हमने उसी रोल मॉडल्स की चीज़ें देखते हुए, बेस्ट प्रैक्टिसेज़ करते हुए, हमने देखे एक्रेडिटेशंस की बात की। अस्पताल के लिए रोल मॉडल जेसीआई था, तो आज से 10-15 साल पहले उन्होंने सोचा तो उस पे काम करना शुरू किया और देखा गया। तो ऑलवेज़ फॉर अ सक्सेस एंड बेटर रिजल्ट्स यू मस्ट हैव अ रोल मॉडल। इन पेयर्स में होता है, थिंक ऑफ अ रोल मॉडल हू यू कंसीडर गुड, या आपको या दूसरों को करने वाले कोई भी हो सकते हैं। तो आप सब अपने-अपने रोल मॉडल को फॉलो करते हुए जब जाएँगे, चीज़ें बेहतर होंगी। फिर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लगते हैं कि उनमें होने चाहिए ताकि वो जाएँ? ये मैंने कुछ पिक्स लगाई हैं देखें, सेंटर वाली को। मुझे ये अच्छा लगता है कि यार कोई चीज़ बंदा जो नहीं कर रहा होता उसको हेल्प कर दें, उसको सपोर्ट कर दें, अपलिफ्ट करें ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो। मैं ऐसे लोगों को रोल मॉडल समझता हूँ या जानना चाहता हूँ। देन बीइंग अ मुस्लिम, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हसना है। जैसे उन्होंने काम किए, जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मामलात रखे, दीन दुनिया दोनों, हम अगर वैसे कर लेंगे तो शायद हमारी दीन दुनिया दोनों में कामयाबी होगी यकीनन। तो रोल मॉडल किसी भी तरह के हो सकते हैं, फैंटेसी टाइप भी हो सकते हैं, या आप उसको उसके बिहेवियर की बेस पे, उसकी अपीयरेंस की बेस पे, उसकी इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन, रेफरेंस कोई भी चीज़ हो सकती है। तो रोल मॉडल इज़ वेरी इंपोर्टेंट फर्स्ट फॉर बीइंग अ सेल्फ मोटिवेटर। हाँ, पावर ऑफ स्माइल वेरी इंपोर्टेंट। अब आप इस पिक्चर को ही देखें तो सारों ने मुँह बिसोरे हुए हैं।
एक हैप्पी फेस बीच में नजर आ रहा है। देखें स्माइल की पावर, कितना डिफरेंट लुक है उसका। तो स्माइल तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सब एग्री करेंगे कि हमारा जो GUEST का एक्रोनिम है, उसमें हमारा S स्टैंड फॉर स्माइल। वेरी इंपॉर्टेंट। हम सर्विसेज में हैं, हम डेली अपने पेशेंट से, कस्टमर से मिल रहे होते हैं, हम डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं, हम नर्सिंग से बात कर रहे होते हैं। अगर हम थोड़ा सा हंस के, इट इज नॉट लाफ्टर, इसमें सिंपल स्माइल, एक अच्छे तरीके से, एक वेलकमिंग वे में, एज अ मुस्लिम, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप एक स्माइली फेस के साथ जब किसी से बात करेंगे, वो आपसे अच्छे तरीके से बात करेगा। हमारे कितने कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो सकते हैं, हमारे कितने मसाइल का हल आइए। तो पावर ऑफ स्माइल पे पूरा जो समझे कि सेशंस के सेशंस रखे जा सकते हैं, अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे। बट हैव इट अ हैबिट। ये फैसल साहब कह रहे हैं, कोई और कह रहा है, तब नहीं। ये आपके अंदर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। जब भी आप बात करें, आप हंसें उनसे, स्माइलिंग फेज में, एक वेलकमिंग वे में बात करें, तो आप लोगों में खुद ब खुद पहचाने जाएंगे, जैसे ये हमारी एक बाउंसी बॉल पहचानी जा रही है। सो स्माइल हैज अ लॉट ऑफ पावर फॉर दिस। तो आप अगर स्माइल भी करेंगे ना, ये भी आपको मोटिवेशन होगी, लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे, आपसे ही बात करना चाहेंगे, आपसे ही काउंसलिंग करना चाहेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स भी होते हैं हमारे, कुछ इंटरनल रिवॉर्ड्स भी होते हैं। सारी बात है, हम एक नीड्स आती हैं जिंदगी गुजारने के लिए, हमें बहुत सारे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सेल्फ मोटिवेशन है, लेकिन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के साथ वो मैच कर रही होती है। एक्सटर्नल में हमारे पास प्रिविलेजेस, हमारी सैलरीज, पैकेजेस, इनकी बात हो रही होती है। हमारी वर्किंग कंडीशंस, मैं चूंकि इतने अरसे से काम इस फील्ड में हूँ, हमारे साथ के कई लोग जब शिफा छोड़ के किसी और एनवायरनमेंट या उस जगह काम करते हैं, तो बड़ा याद करते हैं, यार वहाँ ऐसे इन्वायरमेंट, वहाँ ऐसा काम, वहाँ ऐसा चीज़ें, बेनिफिट्स हेल्थ केयर लेके, आपके ओवरऑल डे इन डे आउट के बेनिफिट्स की बात हो रही होती है। आपकी सिक्योरिटी, आपकी डेली परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा रहा होता है। तो वर्किंग कंडीशंस और ये सारे रिवॉर्ड्स हैं। आपको एक अच्छी एनवायरनमेंट में हो, तो दिन अच्छा गुजरे, आपने जो मकसद उस दिन के टास्क थे अचीव कर लिए, तो दैट इज ग्रेट। अगर आपको किसी जगह पैसे और वो तो मिल रहे हो, लेकिन वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, वहाँ और मसाइल हों, बीइंग अ फीमेल वहाँ और हरासमेंट और ऐसी चीज़ें चल रही हों, कंडीशंस, एनवायरनमेंट आपको बिल्कुल सूट ना कर रही हो, बेशक पैसे मिल रहे हों, मेरा नहीं ख्याल कि आप उधर ज़्यादा अरसा सर्वाइव कर पाएँगे। तो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स डज़ मैटर। फिर इंटरनल में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, हम अचीवमेंट, हमारे लिए यानी कि जब भी कोई अचीवमेंट हो उसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, ये एक इंटरनल रिवॉर्ड होता है। तो डिपार्टमेंट वाइज़ अगर आप शिफा में देखेंगे तो ये प्रैक्टिसेज़ आपको पाई जाएँगी। अचीवमेंट्स होती हैं, एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ, नर्स ऑफ द मंथ, इस तरीके से चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं। एट फार्मेसी लेवल पे भी हम देखें तो छोटे-छोटे प्रोग्राम करके हम बिल्कुल अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज़ कर रहे होते हैं। हो सकता है कुछ हद तक ना भी कर पा रहे हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि हम 100% कर रहे होंगे, बट ये इंटरनल रिवॉर्ड्स मैटर करते हैं, एंड वी एज अ स्टाफ, एज अ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, इसको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उनको शोकेस करना, जैसे अब फार्मासिस्ट डे आता है, हम कितनी उनकी रिकॉग्निशंस करते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, उनकी एक्नॉलेजमेंट हो रही होती है। तो ये एक इंटरनल रिवॉर्ड है, और इस चीज़ को हासिल करने के लिए आप सब लोग अपने तय मेहनत कर रहे होते हैं, तो ये एक मोटिवेशन का टाइप है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, प्रोग्राम मिलते हैं जो कि हमारे एम्प्लॉइज़ को अपना काम करने के लिए, ज़ाहिर-सी बात है जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे वो सोचेगा कि हाँ यार, मैं काम मेरे ज़िम्मे लगाया है, मैंने करना है, डेफ़िनिटली वो करेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसको रिकॉग्नाइज़ करना, विनर्स हैं, सर्विस क्वालिटी अवार्ड, बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट एटसेट्रा, बहुत सारे अवार्ड्स आप रिकॉग्नाइज़ जब कर लेंगे, आपको स्टाफ एंगेज भी मिलेगा, मोटिवेटेड भी मिलेगा, और वो आगे कैरी ऑन भी रहेगा। फिर फीडबैक का एक सिस्टम होता है इंटरनल रिवॉर्ड्स में, कि आप सिस्टम ऑफ फीडबैक एंड परफॉर्मेंस अप्रेज़ल, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे हॉस्पिटल में भी है, इंटरनली भी है। 360 डिग्री भी हमारे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस होता है एट सम लेवल्स। तो हम आप लोगों की सबऑर्डिनेट्स की जो फीडबैक देते हैं, यार तुम ये अच्छा काम कर रहे हो, ये नहीं कर रहे, इसको ऐसे करना चाहिए। तो ये टू वे कम्युनिकेशन जब फीडबैक के थ्रू होती है, एक दफ़ा साल में परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के थ्रू, और बाकी केस टू केस हैंड्स ऑन, हम डेली इन डे आउट, हम जब फीडबैक कस्टमर से ले रहे होते हैं, हम सर्विसेज जिस तरह इम्प्रूव, क्या आप सब लोग एग्री करेंगे, आज हम जिस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या आज से बहुत अरसा पहले भी ऐसे देते थे? नो, वी ऑलवेज हैव बीन इम्प्रूविंग, हम इवॉल्व हुए हैं। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जब भी कोई फीडबैक या कंप्लेंट आती है, मी एज अ सीनियर पर्सन ऑलवेज लुक, मैम सलवा, हम सब लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यार ये
इश्यू आया है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कि रिपीट ना हो। तो वी ऑलवेज टुक ऑल दोज कंस्ट्रक्टिव थिंग्स। हम ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते यार फीडबैक दिया ऐसा तो होता है, नो, देन वी विल नॉट इम्प्रूव। तो फीडबैक और उसकी फिर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज पे उसके अकॉर्डिंगली काम करना आपको हमेशा इम्प्रूव करता है जी। फिर लर्निंग एंड ग्रोथ के मौके गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रेनिंग डेवलपमेंट। आज हमारा एक देखें हम 1 आवर वी आर स्पेंडिंग टू दीज, ताकि हम आज इन अपनी सॉफ्ट स्किल्स और इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। हम इसीलिए आज बैठे हैं। तो थैंक्स टू द सेफ्टी एंड दिस हमारा जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर है, सीपीडी है, हमारा ओवरऑल हॉस्पिटल वाइड भी हम लर्निंग करते हैं। हम यहाँ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल को भी बता रहे होते हैं। तो लर्निंग एंड ग्रोथ डे इन डे आउट है। हम कहें कि यार इतना अरसा एक्सपीरियंस हो गया, हमें अब ज़रूरत नहीं है। नो, मैं आज भी आप में से किसी से कुछ सीख सकता हूँ और आपको भी अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। तो लर्निंग एंड ग्रोथ विल नेवर एंड। ये कंटिन्यूअस एफर्ट्स हैं, कंटिन्यूअसली आगे से आगे चलेंगी। फिर एनालाइज ट्रेनिंग नीड्स, हमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट। अब जैसे एम्बुलेटरी केयर में हम पिछले 2-3 साल से अपनी सेकंड लाइन लीडरशिप के हवाले से सेल्फ लीडरशिप आप सब लोगों को आगे ला रहे हैं कि यार किस तरीके से आप चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। अपने स्टाफ को, अपनी सर्विसेज को, अपने इश्यूज को किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप विन विन सिचुएशन के साथ आगे चलें। तो ट्रेनिंग नीड्स में एनालाइज है, इसमें एचआर भी हेल्प कर रहा होता है। तो ये ट्रेनिंग नीड्स हमें अपने लिए भी और अपने स्टाफ सबके लिए करते रहनी चाहिए। तो एक्सटर्नल और इंटरनल रिवॉर्ड्स की कुछ ये चीज़ें थी जो मैंने कहा आपसे शेयर करूँगा। नाउ 10 टेरिफिक सेल्फ मोटिवेटेड टिप्स। तो माइक मूरी एक हमारे स्टेट्स में रहने वाले एक मोटिवेशनल पर्सन हैं, जिनकी मैंने ये कुछ टिप्स वहाँ से फाइंड आउट की, और चाहूँगा कि हम इसको थोड़ा वन बाय वन डिस्कस भी करें, और हम इनमें से जो भी कर पाएँ, तो डेफ़िनेटली आप सेल्फ मोटिवेशन कर पाएँगे और आपके एक अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको, ताकि आप कोई ना कोई चीज़ ले सकें। सो हियर वी गो। वन पहली वो क्या बताती है जी हमारे पास, बी विलिंग टू लीव योर कंफर्ट ज़ोन। हम सब लोग जब भी कोई टास्क या कोई चीज़ असाइन होती है, तो हमारा एक इंटरनल एक बॉडी में होता है कि यार ये हमारी कंफर्ट ज़ोन, हम ऐसा करेंगे तो हमें तो जिस तरह कर रहे हैं उससे हटना पड़ेगा। तो ऑलवेज़ बी विलिंग टू लीव योर कंफर्ट ज़ोन। आप कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलेंगे तो यू विल नेवर इम्प्रूव, यू विल नेवर ग्रो। ग्रेट थिंग्स हैपन ऑलवेज़ व्हेन यू मेक फ्रेंड्स विद योर डिस्कम्फर्ट ज़ोन। आप डिस्कम्फर्ट ज़ोन वाले से करोगे, हमेशा आपको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिलेगी और उसी से ही आपको बेहतरी आएगी। अगर आप रूटीन एक रेगुलर चीज़ के साथ करते रहेंगे तो फिर आगे ग्रोथ नहीं मिलती। तो हमें सबसे पहले चैलेंज मिलता है, हम अपने आप को उसमें पुश करते हैं कि यार करो, इसको चेंज करो, उसको ट्राई करना चाहिए। जब वो चेंज आ जाती है, उसकी बेस पे हमें ग्रो मिलती है और हम कंफर्ट ज़ोन छोड़ के उस नई चीज़ के साथ चल पड़ते हैं। तो बी विलिंग बड़ा इम्पोर्टेंट, हम सब लोग एग्री करें और इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनिटली ये हमारा पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स सेल्फ मोटिवेटिंग। Second, don't be afraid to make mistakes, but calculated or something, because we are in a healthcare profession. हम फार्मासिस्ट हैं, हम मिस्टेक्स कह तो रहे हैं कि आप करें, लेकिन ऐसी नहीं कि पेशेंट की सेफ्टी कंप्रोमाइज हो जाए, ऑन दैट बेस नहीं। लेकिन रिस्क लेने की बात है कि यार ये तरीका ऐसे नहीं, ऐसे करके देख लेते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं, उस तरह की है। गलती होगी, प्रोसेस में होगी, ह्यूमन। लेकिन ये अब बात नहीं हो रही कि यार किसी की डोज या वो। तो डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, बिकॉज वी हैव टू टेक रिस्क, ask big questions. Don't be afraid to make mistake. If you don't make mistake, you are not reaching for enough. हमेशा जो लोग कुछ मिस्टेक्स करके ही अपनी उन चीजों से सीखते हैं और आगे बेहतरी की तरफ जाते हैं। विजडम हेल्प अस अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। हमें विजडम यही बताती है ना कि मिस्टेक ना करें, लेकिन विजडम आती कहाँ से है? मेकिंग अ मिलियन ऑफ देम। अगर आज मैं ये बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, तो मैंने कई मौकों पे कई गलतियाँ की होंगी जो मेरे लिए लेसन बनी, और मैंने फिर आगे कहा कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो ऑलवेज विजडम के लिए उन चीज़ों को करना है, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी ऑफ पेशेंट। देन वी हैव डोंट इंडल्ज इन सेल्फ लिमिटिंग थिंकिंग। सिर्फ अपने आप के बारे में ना कहें कि यार मैं ही ये कर लूँ, मैं, या ऐसा नहीं। ऑलवेज थिंक एम्पावरिंग, टीम अप्रोच के साथ जाएं, एक्सपेंसिव जाएं कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या और होना चाहिए। हमें औरों को हेल्प कर सकते हैं कि मेरी इस छोटी सी एफर्ट से टीम को क्या बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ अपने तक महदूद ना करें उन चीज़ों को। सेल्फ लिमिटिंग थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। सो 3 हो गई। चौथी टिप है चूज़ टू बी हैप्पी। हैप्पी, वो स्माइल की बात हो गई, तो वो हैप्पी का ही एक किस्म है। हम हैप्पी कैसे हो सकते हैं यार? हैप्पी इज़ ऑलवेज़ मोटिवेटेड, खुश रहना
ऑल्दो वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, लेकिन खुश रहने के लिए छोटी-छोटी शायद वजूहें ढूँढनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है। आप अगर पेशेंट से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी इंटरेक्शन हो रही है, आपकी दवाइयाँ आ रही हैं, डॉक्टर से बात हो रही है, नर्स को एजुकेट कर रहे हैं, ड्रग्स अवेलेबल हो रही हैं, एटसेट्रा। एज़ बीइंग अ फार्मासिस्ट और हम चूँकि हेल्थ केयर सेक्टर में हैं, तो आपको उसके रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। अदरवाइज़ तो आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। आपके घर में बर्थडे चल रही है, हैप्पी पीपल आज है, तो ऑलवेज़ चूज़ टू बी हैप्पी। कैसे रह सकते हैं ये देखना है, और जो चीज़ आपको खुशी दे, आप वो वाले काम करें। बिकॉज़ आई एम इन चार्ज ऑफ हाउ फील एंड टुडे आई एम चूज़िंग हैप्पीनेस। हम हैप्पीनेस को जब चूज़ करेंगे किसी भी दिन या हर लम्हे, तो आपको एक अचीवमेंट्स मिलती हैं। देन स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर अ डे इन सेल्फ डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शायद मैं खुद भी किसी हद तक लैग करता हूँगा। 1 घंटा हमें ज़रूर लगाना चाहिए अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में। सेल्फ डेवलपमेंट किसी तरीके से हो सकती है, कोई बुक पढ़ लें, आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप किसी दोस्त के साथ बैठें, कोई नई चीज़ सीखें। 1 घंटा ज़रूर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। अपनी आपको पता होगी कि यार मेरी जो चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं, उन पे काम करके आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये 1 घंटा भी पर डे करें, तो देखें 8 घंटे की जॉब उस दौरान कर सकते हैं, ऑड आवर्स में घर जाके किसी भी टाइम 24 में से 1 घंटा हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। ये सेल्फ डेवलप जब होती जाएगी, यही आपको मोटिवेट करेगी, यार ये मैंने चीज़ इम्प्रूव करनी है, ये मैंने सीखना है, ये मैंने करना है। इर्रेस्पेक्टिव मैं किसी जूनियर से, सीनियर से, इन चीज़ों से बिल्कुल निकल जाएँ। आप हमसे, हम आपसे, एक-दूसरे से भी पूछ सकते हैं। वी ऑल आर मोटिवेटर टू ईच अदर, मैं ये समझता हूँ। देन ट्रेन योरसेल्फ टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। अपने आप को उस पे ट्रेन ज़रूर रखें कि बी अ गुड फिनिशर। आप देखें हमारे क्रिकेट मैच रिसेंटली बहुत, हम कितना अच्छा स्टार्ट ले लेते हैं, बट वी कांट फिनिश। जब फिनिश नहीं करते, रिजल्ट ही नहीं आता, मैच हार गए। तो ट्रेन योरसेल्फ टू फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। आप हमेशा जब स्टार्ट लेके टारगेट करना है, मैंने इसको फिनिश करना है। फिनिश वन टास्क बिफोर यू बिगिन अनदर, हमें ये ज़रूर करना चाहिए। अगर बहुत सारे टास्क एक वक़्त में खुले होंगे एज़ अ मल्टीटास्कर, वी नो हम डे इन डे आउट, लेकिन टास्क को कंप्लीट और फिनिश करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। ये एक मोटिवेशन है। अगर वो चीज़ नहीं रहेगी, आपको प्रॉब्लम्स आएँगे, आपकी एनवायरनमेंट सही नहीं होगी, रिजल्ट्स नहीं आएँगे, तो आप डिप्रेसिव मोड में जाएँगे। ऑलवेज फिनिश द टास्क, और इसको जो शुरू किया है उसको खत्म करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वी आर थैंकफुल टू आवर मैनेजमेंट एज़ वेल, वो भी हमें इस तरह की मोटिवेशन डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो ये मैं आप सबको बताना भी चाहता हूँ, और ये रिक्वेस्ट भी है कि जो भी काम शुरू करें उसको खत्म ज़रूर करें। आप ये ना कहें कि यार कोई पूछेगा तो है, ऑलवेज कम फर्स्ट। हो सकता है कि हम या जिसने वो टास्क असाइन किया वो किसी और चीज़ में हो। आपने अगर उस पे कोई परफॉर्मेंस प्रोग्रेस कर ली है, ऑलवेज कम बैक अप अपफ्रंट। कभी भी ये वेट ना करें कि यार मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बता दूँगा कि ये हो गया। नहीं, आपने जितना कर लिया बताएँ, ताकि उससे आपको फर्दर, हाँ, ये हो गया यार, इस हद तक का इसको, या इस वज़ह से नहीं हो रहा तो इसको चेंज करो। तो ऑलवेज ये अपने आप की ट्रेनिंग रखनी चाहिए हमें। 7 है कि लिव फुली इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप वो देखें पिक्चर जो मैंने ड्रॉ की है, बट यू कांट चेंज, वो पास्ट है, गुजर गया, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। जो अब हम 30 मिनट से कर रहे हैं, जितनी मैं बातें कर सकता था, आपने उनमें से कुछ परसीव की होंगी, कुछ कर सकते हैं। ऑलवेज बी इन प्रेजेंट, जो मैं बता रहा हूँ उस पे रहें, वेयर एवरीथिंग चेंजेस है, देखें सेंटर में है। जो पास्ट है उस पे आपका नहीं है, बट यू कैन चेंज इज़ अ फ्यूचर। वो फ्यूचर तभी होगा जब आप प्रेज़ेंट को ठीक करते जाएँगे, हर चीज़ तब्दील होगी, आप खुद फ्यूचर की तरफ पॉज़िटिव वे में मूव करते जाएँगे। तो ऑलवेज़ लिव इन फ्यूचर प्रेज़ेंट, और अपने प्रेज़ेंट थिंग्स को अच्छा करते जाएँगे। देन 8th है कमिट योरसेल्फ टू जॉय। तो वही हैप्पीनेस के साथ की चीज़ है जॉय। अब जॉय किससे मिलता है जी? फैमिली टाइम के साथ है, अपने दोस्तों के साथ है, ये भी टाइम ज़रूरी है, लेकिन हर वक़्त नहीं। आप इसको जॉय तो रखेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ लिमिट्स हैं। एज़ अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज़ अ सर्विस, आपने उस चीज़ को करना है कि आप दिन में कोई ऐसी चीज़, अब जैसे किसी दोस्त के साथ 1 कप चाय पी लेना, आपको जॉय देता है, आपका टाइम अच्छा ज़बरदस्त आप करें। हाँ, किसी भी हवाले से आप अपने आप को कमिटमेंट रख सकते हैं। 9th है हमारा नेवर क्विट व्हेन यू एक्सपीरियंस अ सेटबैक और फ्रस्ट्रेशन। आप क्विट ना करें, यार ये मैं नहीं करता, छोड़ दो। बॉस ने आज डाँट दिया है, सर ने डाँट दिया है, मेरे पेशेंट ने आज ये बात कर ली, ऐसा-ऐसा कर लिया। बड़ी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में। कोई भी फ्रस्ट्रेशन आए, कोई सेटबैक हो, उस पे क्विट नहीं करना। हमें उसको देखना है कि इसको मैं कैसे नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव कर सकता हूँ।
कुछ सूरतों में आपकी मिस्टेक होगी, कुछ सूरतों में आपकी मिस्टेक नहीं भी होगी। लेकिन आप उस कॉन्फ्लिक्ट और उन चीज़ों पे, यही तो आपकी अपनी ड्रिवन है कि आप उसके पॉज़िटिव चीज़ को लें, यार इसने क्यों कहा होगा? क्या अपॉर्च्युनिटी हमारे सिस्टम में होने की है? मेरे अंदर कोई तब्दीली है? मैं क्या ऐसी चीज़ करूँ कि यार ये मुझे या किसी और को ना डाँटे या कोई ऐसा मसला ना हो। तो नेवर क्विट, ऑलवेज़ सेटबैक, फेल्योर्स, ये वाली चीज़ें आपको मोटिवेट करें फ्यूचर बेटरमेंट्स के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेयर टू ड्रीम बिग ड्रीम्स। तो ये शेर साहब कह रहे हैं कि आई विल नॉट क्विट अंटिल आई एम लिविंग द लाइफ आई ड्रीम ऑफ। जिस तरह मैं सोचता हूँ, जिस तरह मेरी ड्रीम है कि यार मुझे ये बनना है, मैंने ये करना है अगले 5 साल में ऐसा, तो डेयर टू ड्रीम बिग ड्रीम्स। तो ड्रीम्स पे भी हमारी आगे कुछ बातें चलेंगी, कुछ डेफिनेशन होंगी, और एक बाद मैं आपको वीडियो भी दिखाऊँगा कि यार लोग किस तरह सोचते हैं और हमें किस तरह की अपनी सोच रखनी चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी फॉर सेल्फ मोटिवेशन। होपफुली आप सब इनमें से कुछ याद कर पाएँगे, अगर इनको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनिटली यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स। तो ये कुछ मैंने हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू के देखे कि यार यूजुअली टॉप रीज़न्स क्या होते हैं पीपल लीव देयर जॉब्स। क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी, तो दैट इज़ आवर जॉब, कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली क्या ऐसे मसाइल होते हैं? हार्वर्ड वालों ने बताया कि 3 किस्म की चीज़ें हैं। लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़, आपको मज़ीद लर्निंग अपॉर्च्युनिटी मिल रही होती है तो आप कहीं और चले जाते हैं या कोई नई स्किल सीखने के लिए। कुछ फीडबैक होता है स्पेशली कि यार मुझे मैनेजर उन्होंने ऐसा-ऐसा कहा, फीडबैक हो गया, ये मसाइल तो थोड़ा-सा। और बैड बॉसेस, अनफॉर्च्यूनेटली जब कॉन्फ्लिक्ट विद द बॉस आ जाए किसी एक लम्हे पे, तो वो भी मसाइल होते हैं बिकॉज़ बॉस ऑलवेज़ से कि यार मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, तुम ऐसा काम करते हो, मैं तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, तुम ऐसा करते हो। तो ये 2-3 रीज़न्स हैं। और जॉब कंटेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी कल्चर, कैलिबर्स ऑफ कोलीग, हमारे लोग, स्टाफ किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो आई एम वेरी मच प्राउड टू शेयर दैट शिफा में इतना अच्छा कल्चर है। कंपनी कल्चर की अगर बात की जाए, तो ये एक-दूसरे को ऑनर करते हैं, ये रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं, और कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिससे किसी की उस तरह दिल आज़ारी हो। तो आई लव दैट, और हमें हमेशा इसी को ही प्रमोट भी करना है। जहाँ ये नहीं होता, तो मैंने जो पहले बात की थी कि यहाँ से हमारे लोग इवन ऑस्ट्रेलिया, स्टेट्स, गल्फ में बहुत सारी जगहों पे गए हैं, लेकिन वो हमारे शिफ़ा के कल्चर को मिस करते हैं। यार शिफ़ा में लोग एक-दूसरे की सेल्फ एस्टीम, ये सब कुछ होता था। एज़ अ बॉस आप हमारी बात की कदर करते थे, हम ऐसा। शायद बाहर ऐसा नहीं है। अगर वो पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन उधर एस्टीम, कल्चर ऐसा नहीं। वो आपको डाँट भी देगा। अगर अरबी खड़ा हुआ है सऊदी अरब में, वो कहेगा यार ये मेरा काम जल्दी करो, अरबी में पता नहीं ऐसी-ऐसी चीज़ें कहेगा कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ऑलवेज़ कल्चर मैटर्स, जहाँ कल्चर अच्छा नहीं होता फिर वहाँ जॉब लोग छोड़ देते हैं। लो ग्रोथ पोटेंशियल होता है कहीं, या चैलेंजेस नहीं होते, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, यार बस मुझे थोपा ही जाता है, मुझसे तो कुछ नहीं, मैं खुद तो कुछ नहीं कर सकता। फिर या पैसे नहीं है, या एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं। तो यूजुअली जॉब जो रिटेन नहीं हो रही होती है, लोग छोड़ रहे होते हैं, इन कॉमन फैक्टर्स के साथ जाते हैं, जिनमें हमने अब से पहले जो 10 टिप्स की, ये अगर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे पास ऑटोमैटिकली रिटेंशन भी होगी, हमारे लोग भी जॉब नहीं छोड़ेंगे, और हमारा एचआर इन चीज़ों पे बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर भी रहा होता है। नाउ मैनी हैव ट्राइड एंड फेल्ड। हम सबको पता है कि ज़िंदगी में सब लोग इस तरह ओवरनाइट तो अचीवमेंट कोई भी नहीं ले सकता। आप जैसे देखें, आर.एच. मेसी फेल्ड 7 टाइम बिफोर हिज स्टोर इन न्यूयॉर्क कॉट ऑन। ये एक रिटेल चेन स्टोर्स का एक बहुत बड़ा था। वो 6-7 दफ़ा फेल्योर के साथ नहीं कामयाब हुआ। आखिर में जाके न्यूयॉर्क में उसने 7th-8th अटेम्प्ट में अपनी चीज़ चेन स्टोर खोली। इस तरह इंग्लिश नॉवेलिस्ट जॉन क्रेज़ी गेट्स 753 रिजेक्शन स्लिप्स बिफोर ही पब्लिश्ड 564 बुक्स। देखें 750 उसकी रिजेक्ट हुई कि यार वो उस मैटर की नहीं थी। उस रिजेक्शन की बेस में उसने छोड़ा नहीं और वो कंटिन्यू हुआ। उसने 564 बुक्स पब्लिश करवा ली। बेसबॉल के लेजेंड बेबी रॉथ स्ट्रक आउट 1330 टाइम्स बट ही आल्सो हिट्स 714 होम रन्स। इसी तरह डोंट वरी अबाउट फेल्योर, वरी अबाउट द चांसेस यू मिस व्हेन यू डोंट इवन ट्राई। देखें कि कितने चांस आपको मिले, आपने उनमें ट्राई नहीं किया, तो आप उन चांसेस को मिस ना करें, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। गो कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स लाइक मैनी अदर्स टू। बहुत सोने मैंने कुछ एग्जांपल ये दी, इसी तरह आपको ये कुछ मैंने चेहरे दिखा रहा हूँ। चार्ली चैपलिन, हम सबको पता है लोग हँसते थे, लेकिन आखिर में वो कितना अच्छा एक कैरेक्टर बना कि आज भी लोग याद करते हैं कि यार चार्ली चैपलिन वाह! उसने अपने अंदर वो मोटिवेशन रखी कि यार मैं अपने इस कैरेक्टर को कैसे ज़िंदा-ए-जावेदाँ बना सकता हूँ कि लोग मुझे बाद में भी याद रखें।
वॉल्ट डिज्नी को आप देख लें तो एक सक्सेस स्टोरी बाद में हुई, लेकिन शुरू में उन्होंने बहुत फेल्योर देखे। कर्नल सैंडर्स जो कि शुरू में इन्होंने काम किया हुआ है, स्टीम इंजन स्टोकर का भी मैं पढ़ रहा था, ये इंश्योरेंस सेल्समैन का काम भी किया इन्होंने। ये आपके फिलिंग स्टेशन ऑपरेटर भी रहे हैं कर्नल सैंडर्स साहब। तो बाद में इन्होंने अपने रेस्टोरेंट और डिफरेंट जो चिकन फ्राइड रेसिपी थी उस पे काम करने के बाद ये आज भी एक ब्रांड बन गए केएफसी का। बिल गेट्स को देखें तो इनकी फैमिली लायर्स की थी, फैमिली कहती थी लायर बनो, लेकिन लायर नहीं। ये अपना इन्होंने सबसे पहले टैरिफ और डाटा एक थी कंपनी किसी के साथ जो ट्रैफिक काउंटर्स पे काम, रिजेक्शन हुई, इन्होंने फिर अटेम्प्ट किया। इस दौरान में हार्वर्ड में गए और अपनी एक माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से इन्होंने, ही वाज द वन फर्स्ट यूएस एट द एज ऑफ 31 बिलियनियर ये बने। जो बिल गेट्स, गूगल और ये सारी माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से बातें थी। तो ये सब लोग, हम सब एक ही तरह से, जैसे इनके पास भी वही, इन्होंने अपनी उस फेल्योर को अटेम्प्ट किया और उसको ये अपॉर्चुनिटी देखी कि मैं आगे कैसे बेहतर करूं। बिकॉज सक्सेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ फेल्योर बट ओवरकम फेल्योर। आपको सक्सेस उसको ओवरकम करके मिलती है। एवरी टाइम विनर्स फेल होते हैं, लेकिन वो उसको जब बाउंस बैक करते हैं, हमें अपडेट मिलता है। वो बैकवर्ड नहीं जाते, वो आगे की तरफ जाते हैं। और हमें अपने फेल्योर से लर्न करना चाहिए। आप अपनी एग्जांपल्स ही देख लें अपनी लाइफ में। हमारे ये जो इंसिडेंट्स हैं ये फेल्योर्स हैं टेक्निकली। अगर मैं आपको बताऊं, हमारी जो पेशेंट की कंप्लेंट्स हैं ये हमारे फेल्योर्स हैं। हमें इनको लर्न करके आगे चलना है। हम इनको ये अपने ऊपर सवार नहीं करें, यार कंप्लेंट्स क्यों, ऐसा क्या, ऐसा तो नहीं, हम तो बहुत अच्छे, हम तो बहुत अच्छे, नो। और वे इस छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी उस कंप्लेंट, उस फेल्योर को लें कि आगे बेहतरी कैसे आएगी। मोस्ट पीपल गिव अप जस्ट व्हेन दे आर अबाउट टू अचीव सक्सेस, ऐसा भी होता है। सो यू जस्ट नीड टू गेट अप इंस्टेड ऑफ गिव अप। आप गेट अप करें, गिव अप ना करें। ये हमारे बड़े भी हमें कहते हैं, मैं भी आपको एडवाइस कर रहा हूँ, तो जस्ट प्रैक्टिस इट। गिव अप नहीं करना। एंड इफ यू वांट टू सक्सीड, डबल योर फेलियर रेट, टॉम वाटसन कहते थे। सो व्हाट इज नीडेड, ऑल दैट नीडेड इज दैट डिजायर टू बी हर्ड। आपने अंदर क्या है, आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, द विल टू लर्न, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, एंड द एबिलिटी टू सी। ये देखें कितनी अच्छी बातें हैं। आपके अंदर डिजायर होगी, विल होगी और एबिलिटी होगी, तो आप खुद ब खुद तब्दीली ले आएंगे। देखें चार पत्थर एक जैसे नहीं है, इसी तरह हम सब स्टाफ एक जैसे नहीं है, हम सबकी अपनी सोच, अपनी परसीविंग। वी मस्ट हैव दैट डिजायर एंड विल। एक कर्ट लेविंस चेंज मॉडल मैंने क्या आपसे शेयर करूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई चीज़ चेंज लाना चाहेंगे अपने अंदर, कोई सिस्टम में, प्रोसेस में, इंडिविजुअली, इस मॉडल की बेस पे होता है। कैसे जी? ऑलवेज एग्जामिन द स्टेटस को। जो चीज़ चल रही है उसको एग्जामिन करें, उसको चैलेंज करें कि यार ये कैसे तब्दील होगी, किसी नए तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमें अपनी ड्राइविंग फोर्सेस को इंक्रीज करना है। ड्राइविंग फोर्स किसी भी तब्दीली में इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग फोर्स वो होगा जो उसके पॉजिटिव को लेके, हाँ यार ये करना है, हमने देखना है। एक होती है ड्राइविंग फोर्सेस, एक होती है रेजिस्टिंग फोर्सेस। रेजिस्टिंग फोर्स हमेशा ना वाले होते हैं, वो ना ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये काम करेंगे तो ये मसाइल, ये मसाइल, ये मसाइल। ड्राइविंग फोर्स होती है कि यार ये करने से ये बेनिफिट, ये बेनिफिट, ये बेनिफिट। तो हाफ ग्लास एम्प्टी वाली बात है। तो हमें हाफ ग्लास फुल वाली बात है कि आधा, आधा पानी है ना, आप आधा खाली क्यों देख रहे हैं, आधा जो भरा हुआ है उसको देखें। ड्राइविंग फोर्स बने। So we have to ensure that employees are ready for the change. हम जब ये ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज करते हैं, वो रेडी हो जाते हैं फॉर दैट चेंज। अब हमने अनफ्रीज करना है उनको, यानी कि जो वो काम कर रहे थे उसको छोड़ के अब नया एग्जीक्यूट द इंटेंडेड चेंज, नया प्रोसेस अप्लाई करें, चेंज डालें। और एक्शन और जो भी पीपल इन्वॉल्व होंगे उनके थ्रू वो हम काम करवाएंगे। थर्ड फेज होता है रीफ्रीज। पहले हमने लोगों को अनफ्रीज करना है जो पिछला काम कर रहे थे, चेंज अप्लाई कर दी। अब हमने उसको रीफ्रीज करना है, क्योंकि अब चेंज आ गया है, तो अब तब्दीली नहीं, अब हमने वही काम बेहतर वाला बेहतर तरीके से करते रहना है। उसमें भी फर्दर कोई गुंजाइश आएगी, ये फिर साइकिल चलेगा। फिर उस रीफ्रीज को अनफ्रीज करके नई चेंज लगा के फिर रीफ्रीज। हमने जमाना है, हमने उस नई चीज को कंसिस्टेंटली करना है ताकि वो हमारा आउटकम परमानेंट रहे। Make change permanent, establish new way of things and reward the desired outcomes. जब भी कोई प्रोसेस अच्छा होता है, हमारा रिजल्ट आ गया, हमने चेंज अप्लाई कर दी, हमें जैसे हमारा आता है पीडीएस से हम पायलट कर रहे होते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, तो जब वो अचीव हो जाता है तो हम उस पर रिकग्निशन भी लेते हैं। आपको याद होगा रिसेंटली हमने लास्ट ईयर ये जो आपका ड्रग लाइब्रेरी पर था, हमने अवार्ड अचीव किया। अब देखिए ना वो कितनी इम्पोर्टेंट चेंज था उस प्रोसेस में फॉर सेफ्टी। तो हमने इस सारे स्टेप को लिया। जो लोग नहीं करना चाहते थे हमने उनको थोड़ा सा कम, हम जो ड्राइविंग फोर्सेस थी वो लगा के
हमने चेंज अप्लाई की, कंपनी बहुत सारा एक एग्जॉस्टिव होता है और ये कभी भी किसी एक पर्सन का नहीं होता। ऑलवेज ये चेंज मॉडल सारे इन्वॉल्व पीपल, हम सब जब एज अ टीम अपना अपना इनपुट डालेंगे, खुद बहुत चीजें होंगी। तो अनफ्रीज चेंज एंड देन रीफ्रीज, तो ये एक चेंज का मॉडल है जो कि हम अप्लाई करते भी हैं और इसी को करते रहने से बेटर आउटकम्स मिलते रहेंगे। Why strive to become self motivated? हमें क्यों ऐसा करते रहना चाहिए? Because it puts you in control. आप जब सेल्फ मोटिवेटेड होंगे तो आप कंट्रोल कर पाएंगे, आप ड्राइविंग फोर्सेस की तरफ जाएंगे। यू विल नॉट हैव टू वेट फॉर समवन एल्स टू मोटिवेट यू। आप बाकायदा उसका हिस्सा बनेंगे और आप कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द अचीवमेंट्स एंड यू विल फील बेटर अबाउट योरसेल्फ। यू बिलीव यू मी, सेल्फ मोटिवेशन की बेस पे आपको अच्छा फीलिंग आती है कि यार मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। रिकग्निशन बेशक कहीं न कहीं देर जो अल्लाह ताला ने आपको नसीब में जैसी चीज़ें लिखी होती हैं वो मिल ही जाती हैं। इंसान उजलत पसंद है, सोचता है कि यार मुझे यहाँ से मिले वैसे, तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आप प्रैक्टिस करें तो ये आपको एक अच्छी फीलिंग देगा। You will no longer see yourself as a slacker and you won't have to feel guilty for not doing what you know what should do। यानी कि अगर उस पे गिल्टी भी फील नहीं होगा, क्या नहीं। आपको जब भी पता चले कि यार ये चीज़ ऐसे हो सकती है, उसको टाइम ट्राई ज़रूर करें विद योर सीनियर डिस्कशंस और इस तरीके से आगे हम चल सकते हैं। हम में से हर बंदा एवरीवन इज़ मोटिवेटेड टू डू समथिंग, ऐसा है ना? यू कैन नो लॉन्गर से दैट यू आर नॉट मोटिवेटेड। आई बिलीव एटलीस्ट जितना हमारा फार्मासिस्ट, फार्मेसी का स्टाफ है, प्लस हमारी जितनी इंटर डिपार्टमेंटल है, हम जिस बंदे से बात करते हैं, मैक्सिमम हमें मिलता है कि सब बंदे मोटिवेटेड हैं काम करने के लिए। और जब हमारे पेस से हम चल रहे होते हैं और कोई पर्सन बीच में आता है जो हमें वो ना वाला लगता है या रेजिस्टिंग फोर्स, कितना ईज़िली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो एटलीस्ट यू शुड बी प्राउड इनफ कि हमारा एटलीस्ट फार्मेसी और फिर शिफा में काम करते हुए सब मोटिवेटेड हैं। ये हमारे जो रेजिडेंट्स हैं ये भी इस सारे कल्चर और इस लर्निंग इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए यहाँ हमारे पास ये इनकी मोटिवेशन है कि यार हम एक साल में कितनी लर्निंग करेंगे एक अच्छा और प्रोफेशनल फार्मासिस्ट बनने के लिए। तो ये एक मोटिवेशन है जी। बिकॉज मोस्ट पीपल आर नॉट मोटिवेटेड टू डू अ डिफिकल्ट या अनइंटरेस्टिंग एक्टिविटी, but actually they are motivated to obtain the result of the unpleasant activity। एक नई चीज जो एक डिस्कम्फर्ट जोन में रह के करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा होगा। एग्जाम्पल मैंने दी अपनी दवाइयों वाली। डू यू टेक कफ मेडिसिन बिकॉज यू लाइक इट? कभी भी कोई कफ मेडिसिन तो लाइक नहीं करेगा, बट यू आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर्ड रिजल्ट कि आपको जो खांसी हो रही है वो खत्म हो जाएगी। तो डिजायर्ड रिजल्ट के लिए हमें बेटर बिटर चीजों के साथ रह के मोटिवेटेड रहते हुए आगे चलना होता है। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड टू डू समथिंग, अब ये एक मतलब है निचोड़ है जो हमें लिटरेचर भी बताता है। यू ईदर हैव नॉट फिगर्ड आउट व्हाट यू वांट आउट ऑफ द एक्टिविटी। आपको पता ही नहीं है कि आप इस काम से क्या अचीव करेंगे। डू नॉट वैल्यू व्हाट द एक्टिविटी विल प्रोड्यूस, इससे हमें आउटकम क्या हासिल होगा। एंड यू आर नॉट फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म थिंकिंग इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म। तो अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो आप इन तीनों में से कोई चीज कर रहे हैं, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिगर योरसेल्फ आउट। हम सब अपने अंदर अपने आप को फिगर आउट करें कि व्हाट वी आर डूइंग एंड वेयर वी वांट टू गो। और तब्दीली हमेशा मैं से शुरू होती है, आपसे नहीं। ये मैंने स्पेशली लगाया है। मैं भी अपने अंदर कोशिश कर भी रहा होता हूँ, करते भी हैं कि मैं अपने अंदर तब्दीली लाऊं ताकि आगे आउटकम्स मिलें और जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैं फुलफिल कर सकूं। पिटफॉल ऑफ एक्सक्यूजेस ये इंपॉर्टेंट थी। हम अक्सर यार ये मैंने इस वजह से नहीं किया, ये इस वजह से नहीं किया, वो मैंने उसको तो ईमेल कर दी थी, ऐसा हो गया। तो पिटफॉल ऑफ एक्सक्यूजेस में नहीं रहना चाहिए। अनसक्सेसफुल पीपल ऑफन हैव गुड रीजंस फॉर नॉट हिटिंग देयर गोल्स। हमें चैलेंजेस, चिल्ड्रन टू केयर, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं कि वो अनसक्सेसफुल क्यों, उन्होंने बस चीजों को बीच में छोड़ा, वो हिट ही नहीं कर पाए, गोल्स अचीव ही नहीं हुए। इसके बरक्स सक्सेसफुल पीपल यूज दो सेम रीजंस एज देयर मोटिवेशन and I cannot give up or I will stuck in this dead end job forever. I have to study harder so that I can properly care for my children। यानी कि कोई भी चीज़ है आपके अंदर मोटिवेशन जब रहेगी आप स्टेप अप होते जाएंगे, स्टेप अप होते जाएंगे। और एक्सक्यूजेस के बारे में क्या कहा गया? ये वो कीले हैं, नेल्स यूज टू बिल्ड अ हाउस ऑफ फेल्योर। यानी कि एक्सक्यूज की वजह से फेल्योर ही है, एक्सक्यूजेस को अपनी जिंदगी से निकाल दें। ये एक साइकिल ऑफ मोटिवेशन की बात हम कर रहे हैं। हमेशा जब भी होता है ये पता चलता है कि ये मैं सारा लगा दूंगा। यस, दैट इज ग्रेट, कांट वेट टू ट्राई इट। हमें हमेशा यार ये नई चीज है कर लेनी चाहिए। एक दफा करने के बाद फिर थ्रिल खत्म, यार ये तो अब पुरानी हो गई।
अब दोबारा क्रैम टाइम, वो अब क्रैम टाइम का मतलब क्या, आपने एक चीज मैक्सिमम हद तक अचीव कर ली है, लबालब आप हर चीज कर चुके हैं, आप दोबारा कहें रिजॉल्व नए तरीके से, फिर नया तरीका करें। ये साइकिल मोटिवेशन चलता रहेगा। जरूरी नहीं है कि जैसा आज कर रहे हैं हम अगले 5 साल बाद भी वैसा करते रहें। ऑलवेज ट्राई टू हैव बेटर बेटर एंड मोटिवेटेड टिप्स सो दैट साइकिल गोज ऑन। सो नो मोर एक्सक्यूजेस, और आपके पास बी प्रोएक्टिव, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम एंड स्टॉप लेटिंग योर टाइम कंट्रोल यू। आप टाइम को कंट्रोल करें, टाइम आपको कंट्रोल ना करे। तो डोंट कंफ्यूज बैड डिसीजन मेकिंग विद डेस्टिनी, इट्स टाइम टू गेट इन कंट्रोल। सो आई एम होपफुल कि अब तक हमने जितनी ये बातें की हैं, मैंने विद सम एग्जांपल्स आपको बताया कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन डू दैट। एंड इंशाल्लाह वी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आप सबको रिप्रेजेंट करते हुए कि यार मुझे फार्मेसी टीम पे भरोसा है कि जब भी कोई चैलेंजिंग टास्क दिया जाता है, हम 110% एफर्ट्स के साथ उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैक्सिमम कामयाबी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, उस पर भी फिर अपॉर्चुनिटी होती है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि था जो न खूब तदरीज वही खूब हुआ, यानी कि जो ना खूब था वो आहिस्ता आहिस्ता खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। अगर आप ये देखें हमारा 1947, अगर ये एफर्ट्स और वो तब्दीली ना होती तो आज हम कहाँ होते हैं, हम आज़ाद ना होते। सो ना खूब को बतदरीज समथिंग, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को तब्दील करें, आप में खूबी होनी चाहिए। तो लास्ट पार्ट हमारा आ गया, डिफाइनिंग योर ड्रीम्स। व्हाट इज अ ड्रीम एंड व्हाट इज योर ड्रीम? आप क्या करना चाहते हैं? पैसे हासिल करना चाहते हैं सबसे ज्यादा, सिक्योरिटी के मसले हैं, फेम चाहिए, सिर्फ सिर्फ खुशी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, या समथिंग एल्स? हम देखें तो हमें ये सब कुछ चाहिए। मैं जैसे समझ रहा हूँ, हमें हैप्पीनेस भी चाहिए, रेस्पेक्ट भी चाहिए, मनी भी चाहिए। ये तमाम चीजें ड्रीम्स हैं। अब इस ड्रीम के हवाले से क्या करेंगे जी? ड्रीम और गोल का डिफरेंस थोड़ा बता दूं। डिक्शनरी जो है वो ड्रीम डिफाइन करती है कंडीशन और अचीवमेंट दैट इज लॉन्ग्ड फॉर एन एस्पायरेशन। एक सिंपल है, यानी कि ड्रीम, यार वो काम ऐसा करना है, ये मैंने अचीवमेंट लेनी है। इसके बरक्स गोल क्या है? फाइनल पर्पस और एम, द एंड टू विच आर डिजाइन ट्रेंड्स विच अ पर्सन एम्स टू रीच और अटेन। ड्रीम जो है आप गोल्स के थ्रू ही दे सकते हैं, छोटे छोटे गोल करके आप उस ड्रीम तक जा सकते हैं। ड्रीम इज अ बिगर पिक्चर, गोल माइट बी समथिंग कि यार आपने ये ऑब्जेक्टिव कर लिया, आपका गोल अचीव हो गया। तो ड्रीम उससे बरक्स है, बड़ी पिक्चर है, बिग स्कैम है आपका। So always they have slightly different meanings. It's hard to have one without the other. Be clear about what you want. Focus on your dream. Keep your focus on what you want rather than what you do not want. जो आप नहीं चाहते उस पर फोकस ना करें, जो आप चाहते हैं उस पर करें, खुद ब खुद चीजें अच्छी से अच्छी होती जाएंगी। सो अपने अंदर बिलीफ रखें। आपकी ब्लू वाली पे देखें तो बीई और यू, बी इन यू, आप अपने अंदर को देखें, अपने अंदर बिलीव रखें कि यू कैन डू दैट। खुद एतमादी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को ठीक करते हुए अपने अंदर ये सेल्फ बिलीफ ला सकते हैं। वेट ना करें कि कोई और आएगा, मुझे थपथपाएगा, कोई मोमेंट जाएगा। डोंट अफ्रेड, गो फॉर इट, आप अटेम्प्ट करें। और यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। और इसी बिलीफ पे मेरी एक वीडियो है आगे नेक्स्ट स्लाइड में, वो आप जब सुनेंगे आखिर में आपको खुद मज़ा भी आएगा सुनते हुए। और डेफिनेटली आई एम लुकिंग के बहुत सारे लोग आज इस सेल्फ मोटिवेशन को प्रैक्टिस भी करेंगे, जो अगर पहले से कर रहे थे वो इसको फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे, जो नहीं कर रहे थे दे कैन स्टार्ट डूइंग। और जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स आती हैं, आप देखें दीवार बन रही थी, एक ने कैसा हल निकाला ऊपर से, एक नीचे से आ गया, एक ने तोड़ के हल निकाल दिया। समथिंग, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, आप उनको अबूर कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू कांट हिट अ कर्व बॉल यू विल नेवर मेक इट इन द बिग लीग्स। कर्व बॉल, ये जो हमारे बेसबॉल वाले होते हैं, इनको पता चलता है कि कर्व बॉल कैसे आती है। तो बिग लीग्स में तो हमेशा इसी की ट्रिक है, आपको ऐसी घूमती हुई बॉल मिलेगी, आप हिट ही नहीं कर पाएंगे। सो दिस कुडंट बी मोर ट्रू बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, इट व्हाट्स यू डू अबाउट इट। आपके साथ क्या हुआ नहीं, ये डायनामिक है, आप क्या कर रहे हैं, आप उसके साथ क्या कर सकते हैं। सेटबैक्स विल हैपन, इट्स व्हाट यू चूज टू डू अबाउट देम दैट मैटर्स। आपने उस वक्त क्या अचीव करने के लिए आपने मैटर्स क्या देखा, आप हमेशा उस पॉजिटिव और आउटकम और उस ड्रीम को देखेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी। और हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह है, जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो वर्ड्स हैं वो भी वाइजली चूज होने चाहिए। और हमारा दिमाग कंप्यूटर है, अगर आप
नेगेटिव वाइब्स के साथ चलेंगे कभी आगे नहीं होगी। हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रखें, डिस्कशन करें, लोगों के साथ घुले-मिलें। जो आपके दिमाग में होगा वही आप एक्शन कर रहे हो। ये हम सबका ईमान है, करते भी हैं और हमारा ब्रेन यही है ना कंप्यूटर की तरह, जो उसमें इनपुट होगा आउटपुट भी वैसे ही आएगा। सो वाइज़ली यूज़ करने हैं हमने वर्ड्स को। So, summary of my this presentation has been self-motivated one always have good outcomes. ये हम सबका प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और ईमान ये सब कुछ है, सक्सेस मिलती ही है। So never give up, accept the change, live your dreams जिस तरह आपका करना चाहते हैं, कुछ भी किसी भी हवाले से अपने टारगेट्स रखें and you must move on. You must move on. Now I'll play the video. Just a second. जी. There are a few things you just can't learn from a textbook that you have to live through to see, to be fully entrenched in. Because here is a simple truth. This world is a tough place. Getting what you want, making the most of the time you have requires that you put yourself in the position to succeed. It means you see a finish line before one exists. Look, no one's ever going to call you and tell you how incredible your idea is. You can't build a business on potential or win a championship on promise. Results are binary. You either accomplished something or you simply did not. Right? That's it. That's what people see, the result. So that means every second, every step of the way from where you are right now until you cross the finish line depends on you and your thoughts. How you internalize failure, how you look at setbacks. When no one is around to pat you on the back or tell you how great you are, will you have enough self-belief to move forward? Because my friends, that's the hardest part. That's what no one talks about. Having the courage to wake up every single day of your life and know that you are building towards something incredible. You are creating a masterpiece from the ground up. And that means that when you're looking in the mirror, you believe in what's staring back at you. You see the unseen and you are willing to bring it to life. That is the foundation that you build greatness on. And it's a daily pursuit, creating milestones, designing the small wins that keep you going, that keep you moving, that get you past all those times you so desperately want to turn around, but know that for you, it simply isn't an option. That is not your reality. You have more waiting for you. And so you press on, cloaked in confidence, you move into the unknown, seeking the day the rest of the world looks up and calls you lucky. They'll look at what you built and say how fortunate you are, but they won't comprehend the 20-hour days, the focus, the ridicule for being different or obsessive or non-conformist. They won't know that self-belief trumped all of that. That it was everything. The word great is separate for a reason. It implies a specific set of beliefs and values. It means you saw light when most people saw darkness. It means you said yes when most people said no. You moved forward when the rest of the world turned around. Believe in your greatness. See it, live it. It is there, and you need to know that it's there. Because it will make all the difference. Your self-belief will define you. So, thank you so much. Thank you so much, Ji. Thank you so much, sir. It was undoubtedly a very inspiring and powerful session, and the real-life example shared by you has really motivated all of us. Let's take some questions from the audience. Okay. Sir, someone is asking that kindly share some tips on boosting confidence.